Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. I am your English educator from Dabur Academy. Today we are going to do a very interesting topic, subject verb agreement. So there are a lot of questions that you will see of subject verb agreement in your competitive exams, like spot the error, where in the sentence you have to spot the error based on subject verb agreement. Likewise, sentence improvement. So in sentence improvement you have to spot the error, and most of the time sentences are based on subject verb agreement. So let's begin with today's interesting topic, subject verb agreement. What is a subject verb agreement? When we say agreement, दो लोगों के बीच में agreement होना चाहिए. So subject is, you have to locate the subject in a sentence, you have to locate the verb. Verb should agree with the subject. अगर आपने he लिखा है, he is your subject, तो उसके साथ आपकी helping verb is आएगी, उसके साथ आपकी helping verb are नहीं आ सकती. Similarly, I will take helping verb am, they will take are or were. So this is the way of understanding how to do subject verb agreement. Let's understand this. Subject verb agreement means that subjects and verbs must always agree in number. Not only does a verb change its form, verb अपनी form भी change करती है according to the subject or according to the tense. In present tense, the form of verb will be different, while in past tense, the form of verb will change. A verb change its form to tell time, but it also can change its form to indicate how many subjects it has. अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब जाएगी उसके साथ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब जाएगी. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. फॉर एग्जाम्पल, here singular subject, first person I run, so here plural we run. Second person you run, plural also you remain as it is, you all run. Now see the third person. Here the verb has changed its form. From run it has become runs. He runs, she runs, the boy runs. बट इफ़ वी चेंज द सब्जेक्ट अगर हम चेंज कर लेते हैं, सिंगुलर से हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, तो वो अपनी फॉर्म फिर से चेंज कर लेता है रन, राइट. लाइकवाइज आई विल ऑलवेज टेक एम, ही शी इट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज और वॉज, हैज़. So this is what we call subject verb agreement. According to subject, verb should agree. According to subject, verb should agree. Okay, let's understand this topic of subject verb agreement with few sentences. So what I have written over here, don't misread the simple subject that has modifier in it. कई बार सेंटेंस के अंदर एक मॉडिफायर होता है और हम उस मॉडिफायर को ही सब्जेक्ट समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखते हैं. सो दैट इज़ द मिस्टेक दैट लॉट ऑफ पीपल डू व्हाइल डूइंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद दिस एग्जाम्पल. द टीचर्स इन द क्लासरूम इज ऑब्लिक आर वेरी एक्सपीरियंस्ड. क्या करते हैं बच्चे, क्लासरूम को सब्जेक्ट समझ लेते हैं. क्लासरूम इज नॉट ए सब्जेक्ट ओवर हियर. So what we have to do, this is a prepositional phrase, इसको हम कट कर देते हैं. ऑल राइट, तो हमारा सब्जेक्ट जो है अपने आप सेंटेंस से निकल के बाहर आ गया. टीचर्स, द टीचर्स. टीचर्स क्या है, वन और मोर देन वन, प्लूरल सब्जेक्ट, सो इट विल टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. द टीचर्स इन द क्लासरूम आर वेरी एक्सपीरियंस्ड. So we have to remove the modifier and subject will come forward of its own. और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस, द बॉक्सेस ऑफ केक मिक्स. सो हियर मॉडिफायर को हम कट कर देंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, बॉक्सेस. सो बॉक्सेस के अकॉर्डिंग आर, राइट. सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, सो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब.
each of the samples was treated with same dose of antibiotics. So each of the samples, so हम इसमें of the sample जो modifier है उसको हम कट कर देंगे. each, फिर उसके साथ क्या आ गया, singular form of verb was. So each of the samples was treated with the same dose of antibiotics, right? Let's understand with one more example. One of my oldest friends, ठीक है. बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, इसकी जगह पे आर लगा देते हैं. वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड्स, तो हमें किसको देखना है, वन को. वन क्या है हमारा, सिंगुलर, तो इसके साथ हमारी आ गई सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. So one of my oldest friends is a social worker. So this you have to keep in mind. Don't misread the simple subject that has modifier in it. Modifier को कट कर देंगे तो subject अपने आप जो है sentence में बाहर आ जाएगा. ठीक है, let's understand this subject verb agreement. Moving on, let's begin with rule number 1. So what is the rule number 1? Two or more subjects joined by and. एक या एक से ज्यादा नाउन जब एंड से जुड़े होते हैं, या एक से ज्यादा प्रोनाउन एंड से अगर जुड़े हुए होते हैं, सो दे आर कंसिडर्ड प्लूरल, उनको प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है. एंड रिक्वायर ए वर्ब फॉर्म विदाउट एन एस, उसमें एस नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स, ये हमने अभी किया था, ही रन्स, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस. ऐसा क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा, ये दे रन. सो देयर विल बी नो SES. ऑल राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. जैन, जॉन एंड बॉब वॉक टू द स्टोर. सो नॉट वॉक्स टू द स्टोर, क्या होगा, वॉक टू द स्टोर. ओनली V1, no without S, right? Bob and his brothers walk to the store. Same, यहाँ पे 3 नाउन थे हमारे पास. यहाँ पे Bob and his brothers, 2 हमें यहाँ पे नाउन दिए हुए हैं. Again, walk to the store. Next sentence, Shrishti and Sonia. Now you try to do this one. Shrishti and Sonia, what will come? Is or are? आप वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं आपका क्या आंसर आता है. सृष्टि एंड सोनिया आर फ्रेंड्स. ठीक है, 2 नाउन्स जॉइन बाय एंड विल बी कंसिडर एज प्लूरल सब्जेक्ट. रोहन एंड अजय डैश ऑन देयर वे टू द एयरपोर्ट. रोहन एंड अजय आर ऑन देयर वे टू द एयरपोर्ट. Now next sentence, bread and butter, what will come here? Is or are his daily breakfast. आप कहेंगे मैम आपने बोला कि 2 नाउन है, अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं तो वो प्लूरल कंसिडर होंगे. सो ब्रेड एंड बटर आर हिज डेली ब्रेकफास्ट, बट दिस विल नॉट बी कंसिडर राइट बिकॉज आंसर इज ब्रेड एंड बटर इज. Why is? In our noun video, we have also discussed this thing that joint noun always take singular form of verb because they are considered as a one single unit. ठीक है, single concept. ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे joint noun? bread and butter, profit and loss, demand and supply, time and tide. Let's make example of time and tide. So time and tide dash for none, क्या आएगा, weight आएगा, weights आएगा. So time and tide is also my joint noun, single concept. So here it will take singular form of verb, time and tide, weights for none. So this you have to keep in mind. अगर नॉर्मल आपके नाउन्स हैं वो जॉइंट नाउन नहीं है, सो दे विल टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, but joint noun always considered as a single concept, so they will take singular form of verb. So these kind of sentences we have to keep in mind. All right, moving on. Rule number 2 says the verb agrees with the nearest subject. ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको और, इधर और
neither nor, not only but also दिखाई देता है. So verb will agree with the nearest subject. What do you mean by nearest subject? This is the nearest subject. और से पहले एक subject है और के बाद एक subject है. So this will be considered your nearest subject. Similarly, not only the teacher but the student. So this is your nearest subject. Either Rohan or his friends. This is your nearest subject. Neither nor, the bears. This is your nearest subject. So verb agree with the nearest subject. अगर nearest subject आपका singular होगा, singular form of verb लगेगी. Plural होगा, plural form of verb लगेगी. For example, the boy or his friends runs or run. What will come here? His friends. So plural, run. The boy or his friends run every day. Second example, not only the teacher but the student. यहाँ पे एक student की बात हो रही है. But the student is also happy. Next sentence, either Rohan or his friends is or are, what will come? Friends, plural subject, are coming today. Neither the lion nor the bears. ठीक है, lion was singular but here it's plural. So what will come? Has or have? Have. Neither the lion nor the bears have escaped from the zoo. Right? So this is your rule number 2, where it says in a sentence, if you notice or, either or, neither nor, not only but also, the verb agrees with the nearest subject. Alright? Moving on to next rule. Rule number 3, verb agrees with the first subject. उसमें verb किससे agree कर रही थी? हमारी second subject में, sentence में जो given था. In case of or, either or, neither nor, not only but also. But if in a sentence you see as well as, along with, not, unlike, together with. अगर आपको सेंटेंस में ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं तो वर्ब किससे एग्री करेगी? द फर्स्ट सब्जेक्ट. मतलब सेकंड वाले पार्ट की रेलिवेंस उसमें नहीं है, हमें इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसिडर करना है. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड नॉट हिज पेरेंट्स. तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम नहीं करेंगे कंसिडर. नॉट हिज पेरेंट्स. सो द चाइल्ड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी. द प्रिंसिपल अकम्पनीड बाय द टीचर. verb agree with the first subject. क्या है सेंटेंस में? accompanied by the teacher. So this is your subject. The principal accompanied by the teacher is entering the class. Last example, the mayor as well as his brothers. तो हम इसमें as well as कॉमा लगा के भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्जेक्ट ये है, इसको हमें सब्जेक्ट नहीं कंसिडर करना है. द मेयर एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू प्रिजन. ऑलराइट, सो these are the 2 rules we did just now. In case of either or, neither nor, not only but also, or, verb agrees with the second mentioned subject. In case of as well as, along with, not, unlike, together with, verb agrees with the first mentioned subject. So you have to memorize these rules. So while doing the sentences, you can correct your answers. Rule number 4. So in a sentence, आपको अगर sentence में each, every, either, neither, जो previous वाला था उसमें क्या था? either or, neither nor. लेकिन अगर sentence में each, every, either, neither, one, everyone, someone, one, everyone, someone, nobody, everybody, ईच एवरी कहीं भी सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है तो दैट विल टेक अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके, टेक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इसको हम कट कर देते हैं. ईच के साथ फिर हमारी क्या आ गई? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस रूम क्लीन. राइट. Next sentence, either of the reporters dash in the courtroom at all the times. Is or are. Either लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा? Is. Either of the reporters is in the courtroom at all times. Everyone is
born talented. Last sentence, try doing it of your own. Someone in the game dash hurt. Were or was? Someone. So was will come. Someone in the game was hurt. So this is your rule number 4. Alright, moving on to rule number 5. This rule we have done in our noun video as well. You can check out that video. So rule number 5, use singular verb with a collective noun acting as a single unit. कलेक्टिव नाउन हमारे जो हैं सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं और कलेक्टिव नाउन हमारे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी लेते हैं, बट व्हेन यू आर कंसिडरिंग देम एज ए सिंगल यूनिट मींस उसमें सारे के सारे एक ही काम कर रहे हैं, देन दे विल बी कंसिडर एज ए कलेक्टिव नाउन एंड विल टेक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. बट इफ दे आर डिवाइडेड देन दे विल टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. यूज ए प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एक्टिंग इंडिविजुअली. जब ग्रुप में जो है मेंबर्स इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं तो हम उसमें जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल्स. सो द टीम गोज टू प्रैक्टिस एट 4. राइट, द टीम गोज, पूरी टीम जाती है प्रैक्टिस करने के लिए 4 in the morning. ओके, द टीम गो टू देयर ओन होम्स आफ्टर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के बाद जो है टीम अपने अपने घर जा रही है. ठीक है, सो दे आर एट डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट हाउसेस. सो इट इज डिवाइडेड, सो इट विल टेक ओनली गो. सो वी डिड दिस कि जब प्लूरल होगा तो उसमें SES नहीं लगेगा वर्ब फॉर्म के साथ. सो इन प्लूरल केस only V1, while in singular it will take S. The team goes to practice at 4. All right, let's try to do some examples. First one, the army dash marching towards the Himalayas. पूरी आर्मी मार्च करके जा रही है या लोग अलग अलग जा रहे हैं? पूरी आर्मी एक साथ मार्च करके जा रही है. सो दिस कलेक्टिव नाउन इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल यूनिट. सो द आर्मी इज मार्चिंग. Try doing second one. The audience dash taking the seats. आप सिनेमा हॉल में एंटर करते हैं और आप सीट लेते हैं अपनी. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू आर सिटिंग टुगेदर, यू आर नॉट सिटिंग टुगेदर, राइट. सब अलग अलग, कोई अपनी सीट ढूंढ रहा है, कोई इधर बैठ रहा है, कोई उधर बैठ रहा है. तो ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया. सो द ऑडियंस आर टेकिंग द सीट. The audience are taking the seat, not the audience is taking the seat. अगर आप audience is लगाएंगे taking the seat में गलत हो जाएगा. But here the audience dash watching the movie. तो सारी audience movie start हो गई है, सब बैठ के देख रहे हैं, right? So collective noun is considered as a single unit here. So the audience is watching the movie. The jury dash divided in the opinion. Jury में the panel of judges में कुछ judges agree करते हैं, कुछ disagree करते हैं. So they are not coming on a one verdict, right? So again it will be considered as a plural form of subject. So the jury are divided in the opinion. Fifth one, the committee dash sponsoring a fundraiser. पूरी एक कमिटी है, कमिटी के सारे मेंबर एग्री कर रहे हैं. So it will be considered as a singular subject. The committee is sponsoring. The soccer team dash many different skills. Soccer team में सबके अलग अलग skills हैं, अलग अलग. तो ये क्या हो गया, अब subject हमारा हो गया plural. So the soccer team have many different skills. I hope this rule is clear to you. Rule number 5, collective noun can take both singular subject as well as plural subject depending on the context. Context in the sense, अगर वो पूरी सिंगल यूनिट कंसिडर किया जा रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, लेकिन अगर उसमें जो है डिवाइडेड है, ओपिनियन वाइज डिवाइडेड है, अलग अलग स्किल्स है, अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग बैठ रहे हैं, सो देन कलेक्टिव नाउन इज डिवाइडेड, सो इट विल टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रूल. रूल नंबर 6, सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब. हमने हमेशा ही पढ़ा कि पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारी वर्ब होती है. बट समटाइम्स इन सेंटेंसेस लाइक हेयर एंड देयर, सो दैट इज फॉलोड बाय द वर्ब. पहले आपकी वर्ब आएगी, उसके बाद आपको आपका सब्जेक्ट मिलेगा.
लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. फाइंड द करेक्ट सब्जेक्ट. आपको यहाँ पे करेक्ट सब्जेक्ट ढूंढना है. वेयर इज माई फ्रेंड्स आएगा? नो, वेयर आर माई फ्रेंड्स. ठीक है, हमारे यहाँ पे है हमारा सब्जेक्ट, वेयर आर माई फ्रेंड्स. सेकेंड वन, देयर डैश अ रीजन फॉर हिज इम्पेशंस. सो देयर, यहाँ पे देयर के बाद मेरा सब्जेक्ट आ रहा है. ठीक है, सो देयर इज ए रीजन फॉर हिज इम्पेशंस. लास्ट एग्जाम्पल, बिहाइंड द एल्म ट्री डैश अ ह्यूज स्टैचू. मैं किसको अपना सब्जेक्ट कंसिडर करूं? इसको, ट्रीज को कंसिडर करूं या ह्यूज स्टैचू को कंसिडर करूं? हमने क्या किया था, मॉडिफायर्स को हम कट कर देते हैं. तो मेरा सब्जेक्ट क्या आ गया? अ ह्यूज स्टैचू. सिंगुलर है, सिंगुलर में एस आएगा साथ में. ठीक है, सो दिस विल बी आंसर. बिहाइंड द एल्म ट्रीज स्टैंड्स ए ह्यूज स्टैचू. So you know how to find the correct subject. Moving on to next rule. Rule number 7. Relative pronoun. Relative pronoun हमारा कब आता है? Relative pronoun shows relation with the relative pronoun shows relation with the noun. ठीक है, जो उससे पहले immediate noun आता है उसके साथ relation show करता है, तो उसको ही वो अपना सब्जेक्ट समझेगा, ना कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज वन ऑफ द विमेन हु डैश वर्किंग वेरी हार्ड. सो नाउ थिंक हार्ड कि क्या आएगा? इज आएगा, आर आएगा. ठीक है, वी ऑल नो दैट दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल. विमेन इज योर प्लूरल. women and women. Women stands for plural. So here हम इसको नहीं सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, हम रिलेटिव प्रोनाउन में इसको सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे. सो माय आंसर इज शी इज वन ऑफ द women who are working hard. ठीक है, मैक्सिमम बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे इज लगा देते हैं क्योंकि वो किसके साथ सोचते हैं? शी के हिसाब से चलते हैं कि शी इज वन ऑफ द, बट ये हमारा सब्जेक्ट है. रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो अपने से पहले इमीडिएट नाउन्स को हिसाब से वर्ब लेता है. ठीक है, सो सेकेंड एग्जाम्पल, राम इज वन ऑफ द गॉड्स. ठीक है, फिर से गॉड्स क्या है? प्लूरल है. राम को हमने कंसिडर नहीं करना है इसमें, लॉर्ड राम को नहीं कंसिडर करेंगे, गॉड्स को कंसिडर करेंगे. राम इज वन ऑफ द गॉड्स दैट हेल्प और हेल्प्स. अगर प्लूरल होता है तो उसमें एस नहीं लगता. सो गॉड्स दैट हेल्प एवरीवन. सो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 7, which says in relative pronoun in case of who, whom, which, that, वो अपने से पहले वाले जो नाउन है जिसके बारे में वो बता रहा है उसके हिसाब से वो अपनी वर्ब लेगा, ना कि जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है उसके हिसाब से. यूज ए सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम्स, sums of money etc. when considered as a unit. सेम कंसेप्ट जैसे कलेक्टिव नाउन में था, जब आप उसको पूरा सिंगल यूनिट कंसिडर कर रहे हो तो सिंगुलर नाउन लेगा, लेकिन अगर स्प्लिट हो जाएगा तो वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा. फॉर एग्जाम्पल, 3 miles इज टू फार टू वॉक. ठीक है, पूरा एक डिस्टेंस की बात हो रही है, पूरे एक डिस्टेंस की बात हो रही है, पूरा एक डिस्टेंस है 3 mile. ठीक है, तो ये पूरे एक डिस्टेंस की जब एक बार में बात होगी तो ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा. 5 years इज द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस. 5 years जो है मैक्सिमम सेंटेंस है, मतलब कलेक्टिवली 5 years की बात हो रही है कि 5 years इज द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस. जो उसको गलती की सजा मिली है वो पूरे 5 साल की मिली है. 5 जो है 5 उसको जो है पूरा कंसिडर किया जा रहा है एज ए वन सिंगल होल. सो इट विल टेक इज. $10 इज ए हाई प्राइस टू पे. आपको एक चीज का सामान का जो है अमाउंट पे करना है, $10 और 10 रुपी उसका टोटल अमाउंट है. सो दैट विल बी कंसिडर एज ए सिंगल यूनिट. बट $10 was scattered on the floor. $10 स्कैटर्ड है, उसमें $1 हो सकता है, $5 हो सकता है, $6 हो सकता है, ऐसे स्कैटर हुए हुए $10. तो दे आर नॉट कंसिडर्ड नाउ सिंगल, क्योंकि कोई आगे उठाएगा तो वो पूरा $10 नहीं उठाएगा, कोई $1 ले जाएगा, कोई $3 ले जाएगा, कोई $4 ले जाएगा. सो नाउ हियर इट विल टेक अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब.
$10 were scattered on the floor. So this you have to keep in mind कि in case of distance, in case of periods of time, sums of money, they will consider this as a singular subject if it is considered as a single unit. All right. Moving on to the next rule. Rule number 9. Nouns that appear plural but they are singular noun एंड टेक सिंगुलर वर्ब. ठीक है, कई बार हमें एक एडिशनल एस देख के यकीन हो जाता है कि अब ये जो है सब्जेक्ट है ये जो है सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल ही हो सकता है. बट दीज आर द फ्यू एक्सेप्शंस. इन स्पाइट ऑफ एस स्टिल दे विल बी कंसिडर एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज, मीजल्स, मम्स, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, wages, meals, assets, cards, politics, crisis. So ethics is an important component of human studies. Okay, so ethics इसमें additional s है, but this is one thing we are talking about, so it will take singular. Another example, maths, what will come? Maths is my favorite subject. Try doing these examples. Measles dash a dangerous disease. ठीक है, इसमें एक S है लेकिन we are talking about one disease. Measles जो है वो एक बीमारी है. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? Measles is a dangerous disease. Last example, the news of Queen's death dash shocked the entire nation. What will come? Has or have? न्यूज के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे. So as it is stated over here that these words, in spite of that they appear plural, they are singular. So the news of Queen's death has. The news of Queen's death has shocked the entire nation. This concept is clear to you. Moving on to the next rule. In our previous video of noun video, we have done abstract nouns. Abstract nouns कौन से होते हैं? Those who which we cannot perceive from our five senses. So love, truth, friendship, all these are my abstract noun. So what the rule says? Abstract nouns and uncountables noun. Uncountables like milk, coffee, rice, sugar, etc. These are my uncountable nouns, are considered as singular subjects and take singular form of verb. So here it is also written water, milk, money. So honesty is the best policy. Try doing second example. Some milk, what will come? Is or are? Some milk is spoiled. कुछ मिल्क जो है वो खराब हो गया है. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मनी इज और वॉज लॉस्ट. ऑल राइट, so this is your rule number 10. Abstract noun and uncountable nouns are considered as singular subjects and take singular form of verb. Moving on to next rule. Rule number 11, a number of और the number of. ठीक है, ये हमारा बहुत ही कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, ए नंबर ऑफ, और हमें लगता है कि हमने क्योंकि किया है एन एप्पल तो ये सिंगुलर है. ठीक है, ए बॉय है तो सिंगुलर है. तो अगर हमने ए नंबर देखा तो हम उसको जो है सिंगुलर समझ लेते हैं. बट हियर द केस इज डिफरेंट. इन केस ऑफ ए नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ सम काउंटेबल नाउन, अगर ए नंबर ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आपका आ रहा है, इज ऑलवेज कंसिडर प्लूरल. द नंबर ऑफ सम काउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर. लेकिन अगर द नंबर ऑफ गिवन है सेंटेंस में और आगे आपके काउंटेबल नाउन है, सो द नंबर के साथ उसको जो है हम सिंगल कंसेप्ट और सिंगल यूनिट समझते हैं, तो उसके साथ हमारा जो है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. फॉर एग्जाम्पल, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ट्रिप. इधर क्या आएगा हमारा?
ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ट्रिप, नॉट इज गोइंग ऑन ट्रिप, क्योंकि वहां पे ए लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप. सेकेंड एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ डिसीज सोल्जर्स, द नंबर ऑफ डिसीज्ड सोल्जर. हियर दिस इज कंसिडर एज ए सिंगल. तो जब हमें सेंटेंस में उस कंटेक्स्ट को भी समझना है कि वो कंटेक्स्ट में प्लूरल कंटेक्स्ट में बोल रहा है या सिंगुलर कंटेक्स्ट में बोल रहा है. द नंबर ऑफ डिसीज सोल्जर ये सिंगुलर कंसेप्ट में है, ठीक है. डैश नॉट स्टोर्ड इन द रिकॉर्ड बुक, was not stored in the record book. All right, so this is your rule number 11. Moving on to rule number 12, the police is taking to a number, sorry, the police is talking to a number of people, the police are talking to a number of people. ठीक है, पहले तो हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हम जब पुलिस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारा कलेक्टिव नाउन है. दैट इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन एट ऑल. ओके, सो नाउन्स लाइक पुलिस, कैटर, वर्मिन, क्लेजी, जेंट्री, पोट्री, फोक, पीपल, चिल्ड्रन, इन्फेंट्री, कैवलरी एक्सेट्रा आर प्लूरल नाउन्स. ये हमारे जो हैं प्लूरल नाउन्स है. सो विच वन इज करेक्ट? द पुलिस आर टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल, दिस इज करेक्ट. ठीक है, तो इसको पहली बात तो हमें कलेक्टिव नाउन नहीं समझना, और ये वाले जो नाउन्स होते हैं हमेशा हमारे जो है प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कंसिडर करे जाते हैं. सो दे आर ऑलवेज कंसिडर एज ए प्लूरल सब्जेक्ट, विल टेक अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब. हियर ऑल्सो कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड. सो क्या आएगा? कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. सो दिस इज योर rule number 12. This rule we have done in our noun video as well. You can go and check out that video to understand this concept. Moving on to the next one. Okay, based on the 12 rules that we have understood just now, let's try to do this exercise. First sentence, 5 liters of milk dash not enough for the party. ठीक है, पार्टी के लिए 5 लीटर मिल्क जो है सफिशिएंट नहीं पड़ेगा. तो क्या ये स्प्लिट हो रहा है या पूरे 5 लीटर के पैकेट की बात हो रही है? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ए फुल 5 लीटर. ठीक है, वी आर नॉट सेपरेटिंग. सो व्हाट विल कम? 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज नेक्स्ट, वन ऑफ द पैसेंजर्स. ठीक है, वन ऑफ द पैसेंजर्स क्या बताया था मैंने? इसको कर दो कट. ठीक है, किसकी बात हो रही है? वन ऑफ द पैसेंजर्स क्या आएगा फिर हमारा? was injured in the accident. Moving on to next one, third, Sam along with his family. हमने रूल किया था along with, together with, verb will agree with the first mention subject. जो first mention subject है उससे verb agree करेगी. Sam along with his family lives in Japan. Next, Ronaldo and Messi, two nouns connected by and take plural form of verb. Ronaldo and Messi are the greatest football player of the 21st century. A pair of trousers. ठीक है, a pair, ये सेम कंसेप्ट हमने अपनी नाउन वीडियो में भी किया है. क्या आएगा? A pair of trousers is. ठीक है, जब हम खाली ट्राउजर्स की बात करते हैं, ट्राउजर्स, टॉन्ग्स, स्पेक्टिकल्स, पैजामास, शूज, जीन्स, सो दे आर ऑलवेज कंसिडर एज अ प्लूरल सब्जेक्ट. बट व्हेन वी ऐड ए पेयर देन इट बिकम्स सिंगुलर. सो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज ऑल दैट आई ब्रॉट अलोंग. सिक्स, नीदर नॉर, ईदर और, इसमें हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था? That verbs agree with the nearest subject or you can say the second subject. तो इसमें second subject हम identify करेंगे. Neither me nor my parents. Parents के साथ क्या आएगा? Are. Parents are aware of the incident. Next, here or there में subject follow होता है. ठीक है, here dash the tomb of Albert Einstein. So what will come? Here lies, क्योंकि एक टूम की बात हो रही है. ठीक है, एक ही पुत्र है एल्बर्ट आइंस्टाइन का. सो here lies the tomb of Albert Einstein.
A pack of lions, ठीक है, collective noun always take singular form of verb. If divided, then it take plural form of verb. A pack of lions is approaching the camp. A number of soldiers. A number of followed by countable noun. So it will consider this as a plural subject. So what will come? A number of soldiers were injured during the war. Last sentence, Aaron together with his wife. कॉमा भी लगा हुआ है, इसका मतलब हमें इस पार्ट को नहीं देखना. Aaron singular subject, singular form of verb. Aaron together with his wife greets the guests of the party. I hope with these 10 sentences the concept of subject verb agreement is clear to you. You can go through the video. If you like this video, like and subscribe our channel Dabard Academy. Thank you for watching this video.